Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious Lord, we humbly bow down at your feet, seeking your grace. Kindly open our eyes of understandings. बहुमूल्य पिता, हम बहुत नम्र होकर तेरे चरणों में आते हैं। हमारी समझ को खोलिए ताकि हम आपके पवित्र वचनों को समझ सकें। Bless us with your word. Enable us to behold your face. In Jesus' name we pray. प्रभु अपने वचनों की आशीष हमें दे। हम इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Last time we have seen how the people of God rejoiced in the presence of the Lord. They, in fact, celebrated the faithfulness of God, the mighty works of God, especially how the Lord brought them through the Red Sea and subdued all the enemies of the people of God. और पिछले अध्याय में हमने निर्गमन 15 अध्याय में देखा कि किस प्रकार जितने भी इजरायली थे और मरियम थे, उन सभी लोगों ने परमेश्वर की आराधना किया और बड़े आनंद से गीत गाया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र से बचाया और तमाम उनके विरोधियों को, शत्रुओं को, जो कि मिस्र की सेना थी, उन सबको नाश कर दिया। इसलिए इस जीत की खुशी में मरियम और सारे साथी लोगों ने बड़े आनंद के साथ यहाँ परमेश्वर को आराधना किया। In fact, this particular event calls us to celebrate the victory of the Lord Jesus Christ. Even in the New Testament, the church, you and me. और ये जो वचन है हमें यही शिक्षा नए नियम में भी देता है कि हम जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जय पाई है, तो हम भी ऐसे ही परमेश्वर की आराधना करना, उनको धन्यवाद करना, क्योंकि हमने यीशु मसीह के द्वारा जय पाया है। Every believer should understand how God displayed His majesty on the cross of Calvary. और हम में से प्रत्येक लोगों को इस बात को समझना है, जानना है कि कैसे परमेश्वर ने अपने अद्भुत रहस्य को और सामर्थ्य को क्रूस पर प्रकट किया है। So, how the Lord has brought the victory on the cross of Calvary. Many people don't know much about it. और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, परंतु हम इस बात को जानना है कि कैसे एक विशेष प्रकार की विजय का कार्य प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। When we know the mighty works of God demonstrated on the cross of Calvary, we celebrate the victory of the Lord Jesus Christ, and we just praise God and thank God and profusely submit ourselves unto Him. और हम जब क्रूस को देखते हैं, वहां पर प्रभु ने हमारे लिए जो विजय के कार्य किए उसको देखते हैं, तो ये सारी चीजों को देखकर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और उसके सामने हम अधीन होकर, समर्पित होकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। We don't have to fight for victory. और हमें विजय के लिए युद्ध करने की जरूरत नहीं है, The fight is already over. क्योंकि युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है The enemy is totally destroyed. और शत्रु पहले ही वो नष्ट हो गया है। And we simply have to celebrate the victory of the Lord Jesus Christ. और इसलिए हमको साधारण तरीके से केवल पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई विजय के कारण धन्यवाद और आराधना करना है। You may ask me, brother, how you say that the victory is already done, or victory is already over, when we see around us the people of God are being persecuted, Christians are humiliated, and we feel, and we see as if Christians are defeated and Christians are put down, and they look like wretched people. और आपके अंदर एक सवाल आ सकता है कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि युद्ध पहले ही जीता जा चुका है, जबकि हम अभी देखते हैं वर्तमान में कितने विश्वासियों को सताया जा रहा है, उनकी दशा बहुत हारी हुई है और बहुत ही उनकी अपमान और जनक दशा हो रही है। ऐसी दशा को देखकर हमें एक सवाल आ सकता है कि कैसे हम कह सकते हैं कि हमने जय पा लिया है। So if you are to understand this, I need to explain little more. और अगर इस चीज को हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें और समझाना पड़ेगा। Brother Anil Khare, you please answer me on behalf of all our other dear ones. Okay, brother? ओके। You tell me, what is the greatest problem on the face of the earth? Over all the centuries, from first man to the last man, what is the greatest problem which man can never solve or resolve?
I think it is a problem of death, What else? sinful nature. Sin, simply one word, because the wages of sin is death. You're right. The only thing is you're coming from the other side. So the simple in one word, the greatest problem of all human beings, from the first man to the last man, is sin. और शुरुआत के मनुष्य से लेकर अंतिम तक के मनुष्य की जो मानव की जो मुख्य समस्या है धरती की, वो पाप है, जिसकी मजदूरी जो है मृत्यु है। And there could be n number of other problems. They can be sorted out. They can be put in the priority number 2, not number 1. और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु हम उसे पहली प्राथमिकता में नहीं रह सकते, वो सारी समस्याएं दूसरी प्राथमिकता में है। Here, the victory is of two sides, just as a coin having two sides, and the victory is of two different perspectives. और यहाँ पे जो विजय मिली है वो सिक्के के दो पहलू के हिसाब से हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार विजय को भी हम जो मिला है हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। One is physical victory, and the other is spiritual victory. एक जो है वो हमको जो शारीरिक जय मिलती है वो है, और दूसरा जो हमें आत्मिक जय मिलती है वो है। So whenever we talk, I think I have already discussed when we were studying about the doctrine on salvation, soteriology. और जब हम उद्धार के अध्ययन कर रहे थे उस समय शायद हमने कुछ बातों को सीखा है। So whenever we say I am saved, there are three things. One is I am saved, I am being saved, I shall be saved. और जब मेरा उद्धार हो गया है, इसका तीन मतलब होता है। एक कि मैं उद्धार पा चुका हूँ, दूसरा ये कि मैं उद्धार पा रहा हूँ, और तीसरा ये कि मैं उद्धार आगे पाऊंगा। So one is past tense, second one is present continuous tense, and the third one is future tense. तो यहाँ पे तीनों काल की हम बात कर रहे हैं। एक जो बीता हुआ समय है, भूतकाल, और अभी जो चल रहा है वर्तमान समय, और आने वाले भविष्य काल के बारे में। Even victory also, victory in the past, victory in the present continuous, and victory in the future. और जय को भी हम देखना है, विजय को तो उसको भी हम देखेंगे जो भूतकाल में मिला, जो भी वर्तमान काल में मिलेगा, और जो आगे भविष्य में हमें मिलेगा विजय। Victory, physical victory and spiritual victory. तो यहाँ पे हमने देखा एक है शारीरिक जय और दूसरा आत्मिक जय। The problem of sin is so great that the wrath of God is upon us. We all know about it. और हम सब जानते हैं कि हमारे पाप के स्वभाव के कारण परमेश्वर का जो न्याय और क्रोध है हमारे ऊपर बहुत ही प्रबल है। Many people think that our problem is Satan. Our problem is not Satan. Our problem is sin. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी समस्या शैतान है, परंतु ऐसा नहीं है। शैतान हमारी समस्या नहीं है, परंतु पाप हमारी समस्या है। Our problem is very God himself, because God is so wrathful, and his wrath should fall upon us, and no one can help us to come out of it. और हमारा जो समस्या है वो परमेश्वर के क्रोध आने की वजह से है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय हमारे पाप के कारण उसका क्रोध जो प्रकट होता है, और उससे उससे हमें परमेश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। So that greatest problem, which can never be solved in any other way, is victoriously demonstrated on the cross of Calvary by the Lord Jesus Christ. और ये एक ऐसी बातें हैं जो इस मानव जो है जिससे जय नहीं पा रहा था, वो तमाम पाप और मृत्यु से जो जय नहीं पा रहा था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जय पाया है। So when Jesus died on the cross of Calvary and rose again victoriously in the third day, what actually has happened? और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मारे गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तो वास्तव में इस घटना में हुआ क्या है? The problem of sin is sorted out. और यहाँ पर जो पाप की जो समस्या थी उसका उपाय और समाधान हो गया है। The wrath of God is pacified. We have already seen that that's called atonement, and being made peace with God. और हम पहले देखे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने वहां पे उपाय किया, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित के रूप में अपने आप को दे दिया, ताकि परमेश्वर का क्रोध जो है वहां पर खत्म हो जाए और मानव को शांति हो जाए, और मनुष्य के साथ उसका मेल मिलाप हो जाए।
The wrath of God is handled, and and now we are at peace with God through Jesus Christ. और यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध जो है वो क्रूस पर समाप्त हो गया है और अब परमेश्वर के साथ हमारा इस कारण से मेल मिलाप हो गया है। We have also studied the doctrine on angels. There we have seen the names of Satan. Is one of the names of the Satan is accuser. और हम जब शैतान की और दूतों की अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि शैतान का जो एक नाम है और वो है एक आलोचना करने वाला या दोष लगाने वाला। Yeah. Now Satan cannot blame. Satan cannot throw mud on us because those the problem of sin is already handled by the Lord Jesus Christ. We are forgiven. Our sins are forgiven. We are cleansed by the precious blood of Jesus Christ. और अब शैतान हम पर दोष नहीं लगा सकता और दोष की वो मिट्टी हम पे नहीं उछाल सकता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर अब क्रूस पर उसे क्षमा कर दिया है। Colossians chapter 2, that's what Apostle Paul says. When Jesus died on the cross of Calvary, he crushed the head of the Satan. Where Satan is called the serpent, the serpent has power in the head. That head is crushed and Jesus Christ crushed its head. और गलातियों की किताब उसके 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को कुचल दिया है और जैसे कि सांप का जो ताकत सिर में होता है तो सांप के सिर को कुचला जाता है, उसी प्रकार प्रभु ने उस शैतान के सिर को कुचल दिया है। Satan only a serpent wagging his tail, but head is already crushed with. We need to look at the head which has been crushed, but not the tail which is wagging. और जो सांप का जो सिर वो कुचला जा चुका है परंतु केवल जो पूंछ बची हुई है वो इधर-उधर भड़क रही है, उसको हम नहीं देखना है, परंतु जो सिर कुचला जा चुका है उसकी ओर हम ध्यान देना है। So I am saved from the wrath of God. People think that we are saved from the devil. No, no, no. Devil is not at all the problem. We are saved from the wrath of God, from the punishment, from the judgment of God. That has been handled once and once for all. और हमको इस बात को अच्छे से समझना है कि हम शैतान से नहीं बचे हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया है क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय है, उसकी जो सज़ा का प्रावधान है, उसकी जो क्रोध है, उससे हम बच गए हैं अभी। Satan is not an issue, और इसलिए शैतान कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। but it is also equally important for us to know that with our personal strength, with our personal wisdom, with all our personal resources, we can never overcome Satan because Satan is very powerful. और जो हम अगर देखें कि अपनी मानवीय बुद्धि से, अपनी मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से हम कभी शैतान को नहीं हरा सकते क्योंकि शैतान भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है। So all human beings were of total failure without Christ. इसीलिए संपूर्ण मानव जाति जो है, वो बिना यीशु मसीह के असफल हो जाती है, फ़ेल हो जाती है। But when a person is born again, when a person receives Jesus Christ as personal savior, when a person believes what Jesus did on the cross of Calvary and washed by the precious blood of Jesus Christ, there is a new relationship with God and man. परंतु जब एक मनुष्य का उद्धार होता है और जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, नया जन्म पाता है, तो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता उसको स्वीकार करने से और वो मनुष्य का परमेश्वर के साथ एक नए सिरे से वहाँ एक संबंध स्थापित हो जाता है। So I'm saved, past tense, it is handled with, it is done with. We don't have to bother about the past because Jesus Christ has done with. और हमें भूतकाल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस समय पर तमाम हमारे पापों को यीशु मसीह ले गया है और यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर नाश कर दिया है, हमारे लिए जय को घोषणा कर दिया है। So in the present continuous tense, yes, I need to have a continuous victory over the temptation and over the attack of sin. और हम अगर वर्तमान काल के समय की बात करें कि हम वर्तमान काल में कैसे उद्धार पा रहे हैं, तो हमें लगातार क्या करना है, लगातार हमको जो सताव हो रहा है, जो प्रलोभन है, उससे बचना है और शैतान के आक्रमण से हमें बचना है। There are three enemies. We need to keep on fighting with them. यस अंकल? There are three enemies in the present continuous tense. We need to keep on fighting with them. और ऐसे 3 चीज़ें हैं जिससे हम इन वर्तमान समय में, वर्तमान काल में युद्ध करते रहना है।
So who are those three enemies? One is flesh, and the second one is world, and the third one is Satan and his angels. और तीन चीजें जिससे हम लड़ते रहते हैं या हमारी लड़ाई होती है, वो पहला शरीर है, दूसरा संसार है और तीसरा शैतान है। How do we fight with these enemies? और हम इन शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? We have already seen we don't have to fight for victory. We only fight through the victory of the Lord Jesus Christ. और हम प्रियो जय पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, परंतु हम यीशु मसीह के द्वारा जय पाया जा चुके हैं, उसके द्वारा हमें लड़ना है। Every believer is blessed with the power of the Holy Spirit who dwells inside us. और प्रत्येक विश्वासी जो है, उनके अंदर जो पवित्र आत्मा वास करती है, उसके द्वारा सामर्थ पाना है। The Spirit of God, the Holy Spirit will give us energy, strength, wisdom, power to overcome the flesh, to overcome the world, to overcome the Satan and his angels. और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ और सभी कुछ देता है, उसके द्वारा हम संसार से, शरीर से और शैतानी शक्तियों से जय पा जाते हैं। Holy Spirit will give us such a grace. Uh, we only keep on celebrating, keep on enjoying the victory that has already been wrought on our behalf by the Lord Jesus Christ. और पवित्र आत्मा के कारण हम हमेशा आनंदित होते हैं और हम हमेशा एक खुशी मनाते रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध को लेकर तब हमें जय दिला दिया, इसलिए हम जय के उत्सव में हमेशा रहते हैं। The third thing is in the future, we are going to be saved from the very presence of sin. There is no sin at all, and there is no Satan, and there is no fallen angels, and there is no fallen world, and there is no problem with with the enemy of flesh. All these things God is going to give us, in the eternity. All these problems are solved once for all. और जितनी भी जो और कुछ समस्याएं हैं जो शैतान की ओर से है, शरीर की ओर से, संसार की ओर से है, जब हम भविष्य में उद्धार पाएंगे तो ये सारी समस्याएं एक साथ और एक ही बार में हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। In the present continuous tense, we have only struggle in the spiritual realm, not in the physical realm. और अगर हम इस समय वर्तमान समय की चलती हुई कंटिन्यूअस जो काल में हम अगर आप समझें, तो जो हमारी जो समस्याएं हैं, हमारा जो संघर्ष है, वो शारीरिक संसार में नहीं परंतु आत्मिक संसार में है। I think let me give you a little more clarity, otherwise you will misunderstand me. और आपको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, नहीं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। If we see in general, yes, we have struggles both spiritual side and physical side. अगर हम साधारण तरीके से देखें तो हमको दोनों समस्या हमको सामना करना पड़ रहा है, शारीरिक युद्ध भी और आत्मिक युद्ध भी। But most of the physical war is won through the spiritual realm. परंतु जितने भी हमारे जो शारीरिक युद्ध हैं, वो वास्तव में हमें आत्मिक क्षेत्र से ही लड़ना है हमें। Because of the spiritual victory which Jesus Christ already wrought on the cross of Calvary, through that victory we can even have the victory over the physical realm as well. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें आत्मिक जय क्रूस के द्वारा मिली हुई है, उस मिली हुई जय के द्वारा हम शारीरिक क्षेत्र में भी हम उसी के द्वारा ही जय पा जाते हैं। But the physical war is yet to be won. We find it fulfillment in Revelation chapter 17 and 18. That is future. और जो हम शारीरिक जो लड़ाई जो जिसमें युद्ध होगा, उसको हम प्रकाशित वाक्य की किताब 17 और 18 में देखते हैं, वो एक भविष्य काल में होने वाली बात है। In the Revelation chapter 19, we see when the Lord Jesus Christ comes to this earth as King of Kings and Lord of Lords, just with his breath, he will destroy all the enemies, all the powers of darkness, just like that. और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर आएगा, तो उस समय उसकी श्वास मात्र से तमाम शत्रु और तमाम जितनी भी दुष्ट की सेना है, ये सारी एक ही साथ नाश हो जाएंगे। This we call as second coming of the Lord Jesus Christ. जिसे हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहते हैं। So our physical fight
Definitely, we have struggle, but if God permits, we may go through suffering, we may go through pain, we may go through insults, we may go through down looking. All such things will happen. But when we keep celebrating the spiritual victories, all such physical struggles are really not counted much. और जब हम शारीरिक युद्ध को देखते हैं, तो शारीरिक वेदनाएं जो हमें सहनी पड़ती है, हमको नीचा देखना पड़ता है, हमको सताव होता है, हमें झुकना पड़ता है, हमारी निंदा होती है। परंतु जब इन सब के बावजूद हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई आत्मिक जय को देखते हैं, तो वो आत्मिक जय के सामने, आत्मिक आनंद के सामने, ये शारीरिक जितनी भी जो सताव है जिसको हम सह रहे हैं, ये बहुत थोड़ी जान पड़ती है। So Romans Gospel chapter 8, Apostle Paul says we are more than conquerors. और रोमियो की किताब 8 अध्याय है, उसमें प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। And in the same chapter, Romans chapter 8, Apostle Paul says that nothing can stop us from the love of God. No death, no peril, no suffering, nothing present, nothing future. Even he says height, depths, breadths, things like that, which cannot be interpreted. He uses all such language. और इसी रोमियो 8 अध्याय में प्रेरित पौलुस और भी कहता है कि इस सृष्टि की कोई भी जो वस्तु है, कोई भी विषय हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, चाहे वो वर्तमान हो, भविष्य हो, चाहे वो ऊंचाई हो, गहराई हो, या कोई भी ऐसी शक्ति या मृत्यु या जीवन भी हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ऐसा वो बताते हैं। Satan is still working on the face of the earth. He may cause some kind of physical attacks, some kind of physical threatenings. That's it. He cannot do anything more than that. और शैतान इस संसार में वर्तमान में लोगों को सताता है, और वो लोगों के ऊपर में शारीरिक आक्रमण करता है, और लोगों की शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। But very shortly, the Lord Jesus Christ is going to come. He will have a physical victory once and once for all. और बस थोड़े ही दिनों बाद, जब कुछ समय में प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे दोबारा आगमन में, उस समय प्रभु इन सारी शारीरिक बातों से जय दे देंगे, और एक बार के लिए और हमेशा के लिए जय दे देंगे। So let me repeat once again. In the present continuous tense, we will have physical struggles and physical challenges, but we can overcome all these things through the spiritual victories which have been already wrought by the Lord Jesus Christ. और वर्तमान चलते हुए समय में जितनी भी संघर्ष हम या सताव या जो भी हमारे ऊपर में आक्रमण हो रहा है, इन सब से हम जो आत्मिक क्षेत्र में हमने यीशु मसीह के द्वारा जय पा गया है, उसके द्वारा हमने इसके ऊपर हम जय पा जाएंगे, ये हम समझना है। So we have seen three things. One is past thing, already over. Present continuous things, yes, we are struggling and passing through. In the third tense, future tense, once for all, God is going to handle this problem of sin. और हम 3 कालों में देख सकते हैं। भूतकाल में प्रभु ने इसे शैतान के सिर के रूप में कुचल के खत्म कर दिया है। वर्तमान समय में हम इसमें कुछ बातों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु भविष्य काल में प्रभु हमारे लिए इस सारी पाप की समस्या को एक बार और उसी समय हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। When we say the past 2000 years ago, the Lord Jesus Christ, what he did in the cross of Calvary, he once for all gave us victory over the judgment of sin, from the punishment of sin, from the wrath of God. और हम इस बात को जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुका दी है, और पाप के कारण, पाप की जो न्याय है, जो सजा है, उन सारी बातों को उन्होंने समाप्त कर दिया है। In the present continuous tense, and God is giving us victory from the power of sin, which attacks us and which drives us to be tempted and to commit sin. And we need to have the victory. As we celebrate the victory of the Lord Jesus Christ, we will have victory over the even physical realm to some extent, and ultimately we are translated into the very image, into the very virtues of the Lord Jesus Christ. और वर्तमान समय के तमाम संघर्षों में हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई आत्मिक जय से कुछ कुछ शारीरिक जय भी मिल जाएगी, परंतु इन तमाम संघर्षों में प्रत्येक क्षण अंश अंश करके हमारा रूप मसीह के रूप में बदलता जाता है,
और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम मसीह के रूप में पूरी रीति से इस कारण बदल जाएंगे। In the very soon, in the second coming of the Lord Jesus Christ, and once for all, the very physical victories also will be will, uh, will be handled by the Lord Jesus Christ. और बहुत थोड़ा सा समय बाकी है जबकि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, और उस दोबारा आगमन में मनुष्य को शारीरिक रूप से भी एक बार के लिए और हमेशा के लिए प्रभु जय दे देंगे। So for that reason, believer every time kneel down before God. We are so inspired, we are so driven to worship God. और हम में से प्रत्येक विश्वासी लोग प्रभु के सामने झुकना है और परमेश्वर का महिमा करते रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें जय दिया, इस बात को हम समझना है। Even when we pray, prayer should occupy most of the time with praise and thanksgiving. और जब हम बहुत प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, तो उस प्रार्थनाओं में बहुत सारा भाग जो है आराधना और स्तुति का होना चाहिए। We are very much blessed through the ministry of the Brother Baksing, where he taught us the importance of praise and worship. You know, the prime time in the Sunday service is given for praise and individual praise and worship. और ब्रदर बख्शी के द्वारा हमने बहुत अच्छी बातें सीखी है कि रविवार की आराधना में और हर प्रकार की प्रार्थना की उपस्थिति में हमें बहुत सारा समय परमेश्वर की स्तुति में और आराधना में बिताना चाहिए। Many people don't understand the importance of worship. I tell you, please think over these matters basing on the scriptural truths. You will agree with me. और बहुत सारे लोग आराधना के महत्व को नहीं समझते हैं, परंतु जब मैं आपको परमेश्वर के वचन से इस सच्चाई को बताऊंगा तब आप इसके महत्व को समझ पाएंगे। Even if you spend all night prayers most of the time should be occupied by praise and worship, thanksgiving, giving glory to God. और जब हम सारी रात प्रार्थना में बैठते हैं, तो सारी रात की प्रार्थना में भी बहुत सारा समय स्तुति और आराधना और प्रभु को धन्यवाद देने में हमें बिताना चाहिए। Because heaven is a place where worship is one and only thing. There's no more prayers in heaven in the eternity. और क्योंकि स्वर्ग में वहां पे परमेश्वर की स्तुति और आराधना और महिमा ही होती रहती है, वहां पे ज्यादा प्रार्थना का काम नहीं है। If you are not a good worshipper, maybe you are not the right candidate for heaven. और अगर आप एक अच्छे आराधक नहीं हैं, तो हो सकता है आप वो स्वर्ग राज्य के लिए एक अच्छे वहां के लिए आप योग्य व्यक्ति नहीं है। Now we are trying to study the journey of Israel. और यहाँ पे हम लोग इजराइलों की यात्रा का अध्ययन कर रहे थे। So from Ramses they came to Sukkot, and from Sukkot they came to Etham, and from Etham they come to Pihahiroth. That's what we have seen so far. और हमने पिछले दिनों देख लिया था कि इजरायली लोग रमसेस से निकले थे, और रमसेस से कूच करने के बाद वो सुक्कोत को पहुंचे, सुक्कोत से वो एताम को आए, और एताम से वो पी हा हिरात की जगह को आए। Here at Pihahiroth they have crossed the Red Sea. और ये जो पीहा हिरोत जगह है, यहाँ वो जगह है जहाँ पर वो लाल समुद्र को पार किए थे। So there are many different schools of thought. और यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी विचारधारा रखते हैं। So we will slowly try to understand how God led them. और हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने उनकी कैसी अगुवाई की। So from there to they came to Mara. It almost took 3 days. और यहाँ पर वो यात्रा करके 3 दिन की यात्रा करके एक मारा नामक जगह पे पहुंचे, We find all the story in Exodus chapter 15. जिस मारा के अध्ययन के विषय हमको निर्गमन के 15 अध्याय में मिलता है। So what happened you see in Exodus chapter 15? और निर्गमन की किताब 15 अध्याय में हम क्या देखते हैं? People are murmuring. और यहाँ पे लोग बहुत कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, उसको हम देखते हैं। So 3 days back they were worshiping God. और 3 दिन पहले ये बहुत आराधना कर रहे थे, Just after 3 days, their whole story started in a different way. और 3 दिन के बाद इनकी पूरी जो कहानी है वो बदल गई, कुछ और यहाँ शुरू हो गया। Exodus 15th chapter verses 22 onwards. So Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Now, when they came to Mara, they could not drink the waters of Mara, for they were bitter.
Therefore, the name of it was called Mara. And the people complained against Moses, saying, "What shall we drink?" और यहाँ हम देखते हैं निर्गम 15 अध्याय उसके 22 से। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और वे जंगल में जाते हुए 3 दिन तक का पानी का सोता न मिले। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। So we have been studying the scripture with a purpose. और हम जो ये वचन पढ़ रहे हैं प्रिय, ये एक उद्देश्य है, इसलिए पढ़ रहे हैं। We have already seen at the very first class that the story of God, as it continues, it shows us our situation just like a mirror. और हमने पहले सीखा था कि किस प्रकार परमेश्वर की कहानी शुरू से लेकर अंत तक हम जो बाइबल में पढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम कहानियों को देखते समय हम इसमें दर्पण के समान अपने जीवन को भी देख पाते हैं। So our story is also involved in the very story of God that is running through from beginning to the end. और शुरुआत से लेकर अंत तक जो परमेश्वर की कहानी चल रही है, इस कहानी में हमारी कहानी भी शामिल है। So it appears as if I am there in the story and I am also doing what they are doing exactly. और ये ऐसा हो रहा है, मानिए कि हम लोग वहां पर मौजूद हैं और हम लोग भी वही कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं। They just traveled for 3 days. When they found the bitter water, they were not able to take bitter water. Immediately they started murmuring. और ये 3 दिन की यात्रा पे पहुंचे और वहां उन्हें कड़वा पानी मिला, पीने का पानी अच्छा नहीं मिला, इसलिए वे लोग बकबक करने लगे। They started complaining. Verse 24 says. और वे लिखा है कि एक शिकायत करने लगे, मूसा के विरोध में लिखा है 24 वचन में। Then verse 25. So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. There he made a statue and an ordinance for them, and there he tested them. और 25 वचन में ऐसा लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। So what kind of testing it is? और वो परीक्षा कैसी थी? Bitter water. एक कड़वे पानी के द्वारा उनकी परीक्षा हुई। So when they were put to test through the process of providing bitter water, how did they respond? और जब कड़वे पानी को देखकर परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की, तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया बदले में? They complained and they murmured. और लिखा है वे शिकायत किए और बकबक करना शुरू किए। My dear brothers and sisters, please remember, we also will have many instances in our lives where we find the bitter experiences. और प्रिय भाई और बहनों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी हम कड़वे अनुभवों को देख पाते हैं। So when you find bitter experiences, how do you respond? और जब आपके जीवन में एक कड़वा अनुभव आता है, तब आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? Maybe you are thirsty, maybe you are hungry, maybe you are sick, maybe some kind of test God allows in our lives. Not that God does not know, God wants us to know who we are and what we are. और कई बार परमेश्वर हमें भूखा रहने देते हैं, प्यासा रहने देते हैं, बीमारी में, कमजोरी में जाने देते हैं, ताकि परमेश्वर हमें बता सके कि हम क्या हैं। बावजूद इसके कि परमेश्वर को मालूम है कि हम क्या हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम जान सकें कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। How do you respond bitter experiences in your life? और अपने जीवन के कड़वे अनुभव के प्रति आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? That's the area of test. और यही जो है वो एक परीक्षा का स्थान है। There are two things in the Bible mentioned, two separate categories. और यहाँ पर बाइबल में हम दो दो विभाग को बांट सकते हैं। Please listen to me carefully. This will help you in your practical life.
आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत मदद करेगा, बहुत ध्यान से सुनिए। One is testing, the other is tempting. और यहाँ पर एक तरफ परीक्षा होती है और दूसरी तरफ हम प्रलोभन को देखते हैं। God tests, devil tempts. और परमेश्वर परीक्षा लेते हैं और शैतान हमें प्रलोभन देता है। Please remember, God never tempts. James chapter 1, it is written, God is not the author of evil. God will never provoke any person to commit sin. God never instigate anyone for evil. So evil or temptation always comes from the devil. God tests, devil tempts. और याकूब की किताब में बताया है कि परमेश्वर किसी भी बुरी बात से किसी की परीक्षा नहीं करते, परंतु ये परीक्षा लेना और प्रलोभन में डालना ये जो शैतान का काम है। परंतु परमेश्वर किसी की अगर लेते हैं तो वो केवल एक परीक्षा लेते हैं। So why Satan tempts? और यहाँ शैतान लोगों को प्रलोभन में क्यों लाता है? You sin. When you sin, you will not be able to enjoy the resources of God, and you will be away from the presence of God, and you will be backsliding, and you will be dooming and destroying your spiritual life. और शैतान जब प्रलोभन डालता है किसी के जीवन में तो वो इसलिए ताकि वो लोग पाप में गिर जाएं, और जब लोग पाप करते हैं तो वहां वो परमेश्वर की जो उपलब्धि से और उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, और वहां से निकल के वो नाश की ओर चले जाते हैं। Devil has one and only agenda: to sin and to drag you into the sinful slavery, and then keeps you away from God. Satan has one and only agenda. और शैतान का एक एजेंडा है, मुख्य उसकी योजना है कि मनुष्य पाप करे और पाप के कारण उनके जीवन में परमेश्वर से दूरी आ जाए, और उसके परिणाम स्वरूप वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाए। So that is clear. There is no confusion about it. इसलिए हम इस विषय में हम स्पष्ट होना है। And then secondly, God tests. Why God tests? और हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर कई बार परखते हैं, तो परमेश्वर किसी को क्यों परखते हैं? Two things, two reasons. दो कारणों से परमेश्वर किसी व्यक्ति को परखते हैं। One is to promote you, पहला चीज है कि वो परखने के द्वारा हमारी उन्नति करते हैं, and secondly, God wants us to know where we are. और दूसरा इसलिए परखते हैं ताकि वो चाहते हैं कि हम जान सकें कि हम कहाँ पे हैं। I should know where I am. और मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। So, when you are studying 8th class, if you have to go to 9th class, you need to go through a test. When you pass the test, then you go to 9th class. और जब कोई 8वीं कक्षा में पढ़ता है और वो जब 9वीं कक्षा जाना है उसे, तो वो 8वीं कक्षा की एक परीक्षा को पास करता है, और उसके बाद वो अगली अगली क्लास में 9वीं में चला जाता है। And I think it's very clear for you. You can remember once and once for all. You don't have to forget about this. और ये बहुत एक सरल चीज है जिसे हम एक बार और हमेशा के लिए हम याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। God tests, devil tempts. परमेश्वर परखता है और शैतान प्रलोभन में ले जाता है। God tests so that he gives us promotion. Devil tempts so that you commit sin and away from God and doom and damage. और परमेश्वर हमें परखता है, उसके द्वारा हमें वो उन्नति देता है और बढ़ाता है। परंतु शैतान जब किसी को परखता है और वो प्रलोभन में गिराता है, तो वो पाप कराता है, और पाप के द्वारा वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाकर वो हमेशा के लिए नाश में ले जाता है। और एक point, यहाँ पर एक एक पॉइंट और हम देख सकते हैं। God always tempts at our strongest areas. Devil tempts at our weakest areas. और कई बार परमेश्वर हमें हमारे जीवन के बहुत ही मजबूत जगह पर हमें परखते हैं, परंतु शैतान हमें हमारे जीवन के कमजोर भाग पे हमें वो प्रलोभन में ले जाता है। Devil never tempts us in strong areas. God और never tempts us in weak areas. God और never tests us in weak areas. और शैतान कभी भी हमें मजबूत जगह से में नहीं हमको परखता है, पर और वैसा ही परमेश्वर हमें कभी भी हमारे कमजोर जगह पे हमें नहीं परखते हैं। No, no. God testing never in weak areas.
devil tempting never in strong areas. और शैतान कभी भी हमारे मजबूत पक्ष पे हमारी परीक्षा नहीं लेता है, और उसी प्रकार और परमेश्वर भी कभी हमारे कमजोर विषय पे हमारी परीक्षा नहीं लेता है। So now let us answer this question. When God allows bitter experiences in our lives, how do we respond? अब हमारे पास एक सवाल है कि परमेश्वर अगर कुछ कड़वे अनुभवों को हमारे जीवन में आने का अवसर देता है, तो हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे? Do you murmur? Do you question? क्या आप सवाल करेंगे और बकबक करेंगे? अरे भाई, वो 3 दिन में मरता नहीं है, क्या होता है? और एक दिन what happens? It's only 3 days. No, it's not 10 days or 15 days or 30 days. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 3 दिन के बाद 1 दिन और होता तो ये मर नहीं जाते। यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसा विषय नहीं हुआ है, केवल 3 दिन ही बीते हैं। It's okay if God doesn't give you water for 1 month, then I understand. हाँ, लेकिन यहाँ अगर परमेश्वर उन्हें 1 महीने तक पानी नहीं देते तो हम थोड़ा समझ सकते थे। I know that it is not easy even to spend 1 day without water. I know that. I'm not downsizing the issues of importance of water. और जो जल की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को मैं कम नहीं आँक रहा हूँ, परंतु हमारे लिए और जानता हूँ मैं कि 1 दिन भी बिना पानी के रहना मुश्किल है। Here Bible says God tested them. See verse 25 and the last verse. There he tested them. और यहाँ 25 वचन में, निर्गमन 15 के 25 में लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी वहाँ पर परीक्षा की। Dear brothers and sisters, we are in the fallen world. और प्रिय भाई और बहनों, हम इस गिरे हुए संसार में जीते हैं, We have fallen nature within us. और हमारे अंदर एक गिरा हुआ स्वभाव है। This world is not ours. We are only strangers and pilgrims. और ये संसार हमारा नहीं है, परंतु हम यहाँ पर केवल एक परदेशी और यात्री हैं। Don't expect only sweet water all the time in our lives. और बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि हमेशा मीठा पानी ही हमारे जीवन में हमें मिलेगा। Yeah, sometimes mountain experience, sometimes valley experience, again mountain experience and valley experience. और कई बार हमें चट्टान में चलने का अनुभव होगा, और कई बार हमें तराई में, खाई में चलने का अनुभव होगा। उसके बाद फिर हमारे जीवन में चट्टान में चलने का अनुभव होगा, और फिर तराई में चलने का अनुभव होगा। Yes, we will have bitter waters and then sweet water experiences. We'll have mixed kinds of experiences. Never expect that, be like a comfortable, luxurious life right on this fallen world. That's not right. और कई बार हमें मीठा जल भी मिलेगा, कई बार कड़वा जल भी मिलेगा। हमारा जीवन इस मीठे और कड़वे जल के समान मिला-जुला होगा। हम इस गिरे हुए संसार में कभी उम्मीद नहीं करना है कि हमेशा हमारे जीवन में हमें मीठा जल ही मिलेगा। Even when God allows bitter experiences in our life, the Bible says when we love God, when we are called according to his purposes, because God is sovereign, God will see to it that things will fall in its place where bitter experiences will be converted into sweet experiences. और प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर कड़वे अनुभव को आने का अवसर देता है, अगर इन समयों पर भी हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी योजना के अनुसार चलते रहते हैं, और जो सार्वभौमिक परमेश्वर है, इन तमाम परिस्थितियों में अद्भुत कार्य करता है, और हमारे उस पूरे कड़वे अनुभव को वो एक अच्छे अनुभव में, अर्थात जो कड़वे जल को वो मीठे जल में बदल देता है। That's why I've quoted Romans chapter 8, verse 28 here. If God has to turn bitter waters into sweet waters, we need to love the Lord and we need to walk according to his purposes. These two things are very important. और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कैसे यहाँ पर परमेश्वर ने खारे पानी को मीठे पानी में बदल दिया, उसी प्रकार रोमियो 8:28 के अनुसार अगर हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में तमाम बुराई को भलाई में बदल देंगे। How do we love the Lord? How do we work according to his purposes? Here there are four very clear instructions given in the scriptures. और कैसे हम परमेश्वर को प्रेम करना है और कैसे परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट रीति से 4 आज्ञाएं दी गई है। Exodus chapter 15 verse 26 and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes,
I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals. और निर्गमन 15 के 26 में परमेश्वर ने कहा, उन्हें आज्ञा दी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। We are so smart to claim the promises of God. और हम लोग बहुत ही चतुर हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अंगीकार करने में। I'm not saying that we should not claim the promises of God. Yes, we should claim the promises of God, but we carefully, separate the condition and the promise. और हम बहुत चतुर हैं और हम लोग कई बार प्रतिज्ञा को अंगीकार करके लेना चाहते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं, हम प्रतिज्ञा को अंगीकार करना है, परंतु हम लोग कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर उसको किस परिस्थिति में उस प्रतिज्ञा को दिया है, हम उसे अलग कर देते हैं। We say, Lord, you are the Lord who heals. Jehovah Rapha, I'm sick, please heal me. और हम ऐसे अंगीकार करके हैं परमेश्वर के, वो उद्घोषणा करते हैं वचन का कि तू यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं बीमार हूँ प्रभु, मुझे चंगा कर दे। But we forget the condition before it. परंतु हम यहाँ पर इससे पहले जो परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियां रखी उसे हम भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। Number one, diligently heed the voice of the Lord. और परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूँ, उसके पहले परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियों को रखा है और उसमें पहली शर्त रखी कि अपने परमेश्वर यहोवा का जो वचन है तू तन मन से सुनना। First, take heed the voice of the Lord. That's very important, no? और पहला ही बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को तन मन से सुनना। And then we will know what is right, what is wrong in His sight. So we begin to do what is right in His sight. और जब हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनेंगे तब जान पाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, तब उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही कर पाएंगे। So in His voice, there are two things. One is commandments, and the other things are statutes. स्टेचूस मीन अंकल? Statutes is में विधियों. ओके। तो परमेश्वर के वचनों में हम देखते हैं जो यहाँ पर एक तरफ आज्ञा बताई गई है और दूसरी तरफ विधियों को दिखाया गया है, So we will try to understand little later. और हम इसको कुछ देर बाद समझने की कोशिश करेंगे। When I come to Psalms, I will give you a clear explanation, especially in Psalm 119, because the Word of God is taught in with many synonyms. और जब हम भजन में कुछ वचनों को पढ़ेंगे तब हम वहां पर कुछ बातों को समझेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों से अपनी बातों को सिखाया है। So diligently heed the voice of the Lord. अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। There you get the commandments of God and the statutes of God. और उस परमेश्वर के वचन से मिले हुए आज्ञाओं पर और विधियों को हम कान लगाएं और माने। So commands are the one without any negotiation, just do every bit by bit. और आज्ञा का मतलब होता है कि परमेश्वर ने जो कहा है उसको बिल्कुल अंश अंश करके हम जहां जैसा बोला है वैसा माने। So there are few principles like things where we have little freedom and we should know that what is right and what is wrong. There we will be doing in His sight what is right in His sight. और परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे विवेक में फिर हमें समझाता है कि अच्छा क्या है और गलत क्या है, और उसको हम उसके अनुसार फिर हम काम करते हैं। God never expects obedience without giving His instructions clearly to us. और परमेश्वर कभी भी हमारी आज्ञाकारिता को बिना आज्ञा दिए, बिना आदेश दिए वो जांचते नहीं है। That means God never puts us in dark. God clearly gives us His commands and then expects us to obey His commands. और परमेश्वर हमें अंधेरे में नहीं रखते हैं, परंतु परमेश्वर स्पष्ट रीति से बताते हैं कि आज्ञा क्या है और कैसे हमें उस आज्ञा को मानना है। When can we expect victorious experiences to turn to sweet experiences? और कैसे हमारा कड़वा अनुभव जो है वो मीठे अनुभव में बदल जाएगा? Diligently heed the voice of the Lord. जब हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनेंगे।
when we go through the bitter experiences, immediately what we should learn to tune our ears unto the voice of the Lord. और जैसे ही हम कड़वे अनुभव की तरफ जाते हैं तो उस समय हमें क्या करना है, अपने कान को हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बिल्कुल साफ कर देना है। What to do, brothers and sisters? These days we are very busy. We have no time to hear the voice of God. और लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, और ऐसी व्यस्तता में वो परमेश्वर के वचन को और उसकी आवाज को सुनते नहीं है। We have no time. हमारे पास समय नहीं है। Then God says, "You take a break, man. Then go on to the bed for some time. Take some rest. There you at least listen to the voice of the Lord." इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम जाकर विश्राम करो, और तुम जब आराम से सो जाओगे तब तुम्हें समय मिलेगा, तब तुम सुनोगे। You have been working day and night, no rest to your body, no rest to your mind. And then open your ears to hear the voice of the Lord. और यहाँ दिन और रात हम काम कर रहे हैं प्रियो, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, परंतु हमारे अपने कानों को खोलना है ताकि हम परमेश्वर की शब्द और आवाज सुन सकें। One of these suggestions what I would give you is, और मैं आपको जो जो सुझाव दे रहा हूँ वो ये है, so whenever you go through bitter experiences, जब भी आप कड़वे अनुभव की से होके गुजरे, remember how God has dealt with you when you were under slavery, the mighty power of God by displaying, all the gods of Egypt were false gods, and He displayed His majesty and glory by all those 10 plagues. और हम ऐसे कड़वे अनुभव में गुजरते समय उस या घटना को याद करना है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से छुटकारा दिया था, वहां की गुलामी से, और किस प्रकार मिस्र में 10 विपत्तियों के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया था, उस गवाही को हम उस समय याद करना है। Remember how God led us from the Egypt, the bondage, the land where we were slaves, even unto the Red Sea, and God protected us with His presence in the daytime, with His presence in the night time. Even He parted the Red Sea. He saw to it that all armies of Pharaoh were subdued under the waters of Red Sea. Remember all those past glories. और हमें मिस्र से परमेश्वर किस प्रकार अद्भुत रीति से छुड़ाया, और हमको लाल समुद्र को 2 भाग करके पार ले आया। परमेश्वर इस्राएलियों को कैसे दिन में साथ में रहा, रात में भी साथ में रहा, और उनके लिए अद्भुत काम किया। इन सारी अद्भुत सहायता को और चमत्कार को हमें याद करते रहना चाहिए। When we are down in our mind, we are down in our body. और जब हम अपने मनों में नीचे चले जाते हैं, तो उसके साथ में हम अपने शरीर में भी नीचे चले जाते हैं। So whenever we are facing bitter experiences, normally our thinking, our experiences, our emotions becomes very low. जब भी हम कुछ कड़वाहट में या कड़वे अनुभव में जाते हैं, उस समय हमारी जो मानसिक दशा है वो बहुत निचले स्तर पे चली जाती है, और हम बहुत ही निराशाजनक चीजें महसूस करने लगते हैं। So to overcome bitter experiences, again, sweet experience in the past will help us. और जब भी हम ऐसे कड़वा अनुभव में गुजरे हैं, तो हमें भूतकाल में मिले हुए अच्छे अनुभवों को हमको और मीठे अनुभवों को याद करना चाहिए। So when we remember those sweet experiences with the Lord and the victory what we had, celebrate those victories and overcome the present bitter experiences. और जब भी हम कड़वे अनुभव में होके गुजरे हैं, तो उस समय हम पिछले भूतकाल में मिले हुए मीठे अनुभव को और परमेश्वर के द्वारा मिले हुए जय के उत्सव को हमें याद करते रहना है, और इस दोनों के द्वारा हम वर्तमान काल के कड़वे अनुभव से जय पा जाना है। Please write down how God has given you all glorious experiences in your own past personal experiences. Write down, that will be helpful when we go through bitter experiences. Open the book, the history, how God has dealt with you and displayed His majesty and glory, and celebrate that. You will overcome the present bitter experiences. और हम सब अपने अनुभवों की किताब बनानी है, जिसमें हम पिछले दिनों में तमाम जो परमेश्वर ने हमारी सहायता की और हमको जय के उत्सव में ले गए, और पिछले दिनों प्रभु ने हमें मीठे अनुभवों में ले गए, उस जय की गवाही को हम लिख के रखना है। और इन कठिन परिस्थितियों में वर्तमान कड़वे अनुभव में जाते समय हम उस इतिहास में लिखी हुई बातों को याद करना है,
और उसको याद करके हम इस वर्तमान तमाम कड़वाहट से हम जय पा जाना है। I've taken much time at this particular instance because this is a common experience to most of us. और मैं यहाँ पर अधिक समय इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही है ये ज्यादातर लोगों के साथ ये अनुभव होता है। Verse 26. If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on Egyptians, for I am the Lord who heals you. निर्गमन 15 के 26 में परमेश्वर ने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संज्ञा करने वाला यहोवा हूँ। What doctors cannot heal, what pharmaceuticals, medicines cannot heal, your obedience to the commandments of the Lord will heal you and make you whole. और जो डॉक्टर जो ठीक नहीं कर सकता, जो दवा कंपनी से बनी हुई दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकती, वो चीजें जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे उस आज्ञाकारिता के द्वारा वो चीजें बीमारी ठीक हो जाएंगी। Because our God is doctor to doctors. Our God is a creator and sustainer. और चूंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो रचना करने वाला और रचना करने वाली सृष्टि को संभालने वाला है। So from Mara they comes to Elim. और यहाँ से वो मारा के नामक जगह से एलीम को आए। So there in Exodus chapter 15 verse 27, there they had 12 wells of water and 70 palm trees. और यहाँ निर्गमन 15 अध्याय के 27 में जब लिखा है, जब वो एलीम को आए तो वहां पर उनको पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ मिले। It is just the next verse, in the 26th he was talking about the condition and the promise. In the very next verses there are 12 wells of water and 70 palm trees. और यहाँ पर जो एक वचन पहले परमेश्वर ने आज्ञाओं और विधियों की बातें की और परिस्थितियों की बातें की, और उसके तुरंत बाद एक वचन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इतने सारे पानी के सोते और खजूर के पेड़ हम देखते हैं। That means God was about to give them a sweet water. God was about to feed them with the palm trees. That is a symbol of celebration where we find coconut fruits and coconut oils and dates. It's a very rich stuff. और ये जो एक वास्तव में एक उत्साह मनाने वाली परिस्थितियों को दर्शाता है, जिसमें हम नारियल के फलों को खाते हैं और यहाँ पर खजूर के फलों को खाते हैं। ये सब चीजें जो है एक बहुत अच्छे उत्साह को यहाँ पे दर्शाती है। They could not trust God who was leading them and guiding them. और यहाँ पे हम देखते हैं इजरायली लोग जो परमेश्वर उनको ले जा रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, वो लोग उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। So Bible has been categorically mentioning that during daytime he was guiding them through the pillar of cloud, and the night time he was guiding them through the pillar of fire. और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर इजरायलियों की दिन में बादल की खंबे के द्वारा और रात में अग्नि के खंबे के द्वारा उनकी अगुवाई करते थे। Just there is no water, they were complaining and murmuring. Let's be very careful about it. और हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे लोग जब पानी नहीं मिला तो वे लोग बकबक कर रहे थे और वहां शिकायत करना शुरू किए। God will provide. परमेश्वर व्यवस्था करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। God will definitely provide in his time, but only thing is we should have little patience. Never murmur, never question, never doubt. परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर हमारे लिए चीजें उपलब्ध करा देते हैं, इसलिए हम बकबक नहीं करना है, हम बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना नहीं है। Bible very clearly says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, God will not allow anything beyond what you can bear. और पहला कुरिन्थी 10:13 में परमेश्वर कहते हैं कि कभी भी परमेश्वर मनुष्य की क्षमता से बाहर उन्हें वो परिस्थितियों में नहीं डालते हैं। God knows your capacity. और कभी भी परमेश्वर हमें अपनी क्षमता से बाहर वो कोई काम नहीं देते हैं।
looks like even when he allows beyond your capacity, he opens the door so that you can escape. और अगर हमें लगा कि हमारी जो परीक्षा है वो हमारी क्षमता से बाहर है, तो परमेश्वर कहते हैं कि वो एक रास्ता खोलते हैं ताकि वो उस परीक्षा से बाहर आ जाए। There were 12 wells of water and 70 palm trees. They're going to enjoy it, but they couldn't patiently wait, but they murmured, questioned, and God had to deal with them. और यहाँ पे 12 पानी के सोते भी मिल गए, 70 खजूर के पेड़ भी मिल गए, परंतु यहाँ तक आते तक इजरायली लोग एक धीरज को नहीं धर पाए और वो बीच में ही कुछ दिनों के में कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर दिए। And then from on 15th day of first month and first year, they started their journey. और वो जो इजरायली लोग थे पहले साल के पहले महीने के 15 दिन को यात्रा शुरू किए। You find the whole list in Numbers chapter 33. और ये पूरा हमको गिनती की किताब 33 अध्याय में मिलेगा। And 15th day, second month, and first year, they have come to Doka. और पहले साल के दूसरे महीने के 15वें दिन को वे दोका नामक एक जगह पर पहुंच गए। And from there, they come to Alush, number 33 of Genesis and verse 13. और गिनतियों की किताब 33:13 के अनुसार उसके बाद दोका से वे आलूश नामक जगह पे पहुंचे। There again, there is some problem. और उसके बाद फिर वहां पे इजराइलियों को कुछ समस्या हुई। And chapter 16 of Exodus, verses 2 and 3, I will read it for you. And later, brother Anil Kare, आप भी हिंदी में पढ़ लिए. Then the whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness. And the children of Israel said to them, Oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, and when we ate bread to full. For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. और निर्गमन की किताब 16 का 2 और 3। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे भी डाले जाते तो भी वही उत्तम था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। And verse 1 of the same chapter, Exodus 16. And they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, in the 15th day of the second month, after they departed from the land of Egypt. और 16 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। So here, 15th day, first month, 15th day, second month. How much was the journey took place? और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले महीने के 15वें दिन से यात्रा शुरू की है और दूसरे महीने के 15वें दिन तक यात्रा किए हैं। तो कितने दिन की यात्रा की है? Just 1 month. केवल 1 महीने की। That means 30 days. केवल 30 दिन की यात्रा। Hebrews calendar, monthly calendar, they have 30 days. Exactly 30, all 12 months, 30 days. और जो इब्रियों की जो कैलेंडर में हर महीने में 30 दिन होता है। So they have per year 360 days. और इसलिए उनके हर साल में उनके पास में 360 दिन होते हैं। So just within 1 month, how many times God has been displaying his glory and majesty? How many wonders God has been doing in their midst? और केवल 1 महीने के अंदर में देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके मध्य में कितनी सारी महिमा को और कितने सारे सामर्थ और आश्चर्य कर्म को प्रकट कर रहे हैं। Some time back, they had Mara into sweet experience. और परमेश्वर उन्हें कई बार मारा नामक एक जगहों पर ले जा रहे हैं कुछ अच्छे अनुभवों के दिखाने के लिए। Now they are recalling how they were sat before the pots when they were there in Egypt enjoying the non-veg food. That's what they were complaining.
और यहाँ पर इजरायली लोग बकबक करके बोल रहे हैं कि कैसे हम मांस की हांडियों के पास में बैठ के मिस्र में मनमाना भोजन करते थे, ऐसा वो यहाँ पे कुड़कुड़ा रहे हैं। When we sat, verse 3, when we sat by the parts of meat and when we ate bread to full. और वो कह रहे हैं कि कैसे हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। What a tragedy, my dear brothers and sisters. हम देखते हैं कितनी बड़ी एक कठिन बात है जो यहाँ इजरायली लोग कर रहे हैं। Please don't blame them. We are also of the same kind. और हम सब लोग इजरायलों को दोष नहीं लगाना है, क्योंकि हम सब भी इसी प्रकार के लोग हैं। We also exactly repeat the same thing. और हम लोग भी इसी प्रकार की चीजों को दोहराते रहते हैं। They said, see what kind of language they are using. You see, oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt. और वो कितने एक अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि यदि हम परमेश्वर के हाथ से मिस्र में मर भी जाते तो वही ठीक था। Now he says, now they say, you have brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. और वो सब कह रहे हैं कि तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल के ले आए हो कि इस सारे समाज को तुम भूखे मार डालो। The whole journey did not take not even 1 month, approximately. और ये जो पूरी यात्रा है लगभग अभी 1 महीना भी हुआ, जस्ट 1 महीना ही हुआ है। Now they say, just they have passed through Elim, they had all dates, they had all coconuts and all that. Now they say we are going to die. What kind of language they are using? और इस 1 महीने में अभी अभी हाल ही में अच्छे अच्छे पानी के स्रोतों से और खजूर के पेड़ों से होके गुजरे हैं, और वो तुरंत बाद अब कैसे कह रहे हैं कि हम सब भोजन के बगैर मर जाएंगे। अरे ये क्या है, 1-2 दिन खाना नहीं तो मर जाते हैं क्या? अरे what kind of language they are using? Oh, the Lord should have killed us right then in Egypt. They were crying, Lord, deliver us, deliver us, deliver us. Now they say, oh, better we died right in the Egypt, the Lord. See, the Lord killing them. What language they are using? और ये सब इजरायली वहाँ मिस्र में रहते समय बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि परमेश्वर हमें छुड़ा ले और बचा ले, लेकिन आज यहाँ छुड़ाने के बाद यहाँ आकर वो कुड़कुड़ा कर कह रहे हैं कि परमेश्वर हमको उस मिस्र में ही मार डालता तो अच्छा था। Now the Lord says in Deuteronomy chapter 8, verse 3, He brought this situation again to keep us humble, and He allowed us to hunger so that He may fed us with the food which neither our fathers or our forefathers never enjoyed us, but he fed them with the manna from the heaven. और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि उसने तुझको नम्र भी बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और न तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। God wanted to teach them that they should not depend upon the physical resources, but they should depend upon the spiritual resources. और परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को सिखा रहे थे कि वो केवल सांसारिक जो स्रोत होते हैं उसको ना देखें, परंतु वो आत्मिक स्रोत जो इससे परमेश्वर देता है उसको देख सकें। It is also equally important for us to know that it is God who provides physical resources and spiritual resources. और ये बात हमें अच्छे से जानना है कि जो शारीरिक जरूरतें हैं उसका स्रोत भी परमेश्वर ही देता है, और जो आत्मिक जरूरतें पूरी होने का स्रोत भी परमेश्वर ही देता है। The focus must be more on spiritual resources rather than physical resources. इसलिए हमारा जो ज्यादा ध्यान है वो आत्मिक स्रोत पर होना चाहिए, ना कि शारीरिक स्रोत के ऊपर। God has allowed hunger and thirst in their lives so that they may learn that it is God who satisfies their hunger and thirst, not with physical food and water, but with heavenly manna and with heavenly living water. और परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को भूखा और प्यासा भी होने दिए, क्योंकि परमेश्वर उनको ये सिखाना चाहते थे कि वो उनको कैसे आत्मिक स्रोत से भोजन करा सकते हैं और उन्हें मन्ना के द्वारा उनके भूख और प्यास को तृप्त कर सकते हैं। ऐसा परमेश्वर उन्हें सिखाने के लिए ये सब परिस्थितियां लाने का अवसर दिए। My dear brothers and sisters, please remember this carefully. My soul hungers and thirsts for the living God. That's what
David says in, even the sons of Korah says in Psalms. और भजन संहिता में कैसे दाऊद कहता है, और कोरह की जो वंश है वो भी कहते हैं कि कैसा मेरा जो प्राण है वो मेरा परमेश्वर का प्यासा है। So the hunger and thirst of the soul is more important, and it is priority number one than the hunger and thirst for our physical bellies. और हमारे जो प्राण की जो भूख और प्यास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि शरीर के जो भूख और प्यास है उससे। Here God wants to teach them that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और है, परंतु जो जो वचन ये हवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। God was actually training them. और परमेश्वर उन्हें प्रशिक्षण दे रहे थे। Remember, whenever your hunger and thirst and your hunger and thirst is not quenched, not the needed resources are available, please remember God is testing so that you may depend upon God. It's God who fulfills your hunger and thirst. It is God who gives us the satisfaction, not the food and water what is available on the face of the earth. और परमेश्वर जब भी हमें भूख और प्यास में जाने का अवसर देते हैं उस भूख और प्यास की परिस्थिति में हम परमेश्वर की योजना को समझना है और परमेश्वर को ढूंढना है, ताकि परमेश्वर के द्वारा जो हमें जो वो कार्य करना चाहते हैं उसको हम समझ सकें, उसके द्वारा हम चीजों को पा सकें, ना कि हम शारीरिक भूख और प्यास को मिटाने के लिए हम आगे जाएं। That's what Matthew's Gospel, chapter 4, verse 4. When the Lord Jesus Christ was overcoming the temptation by the same verse, Deuteronomy 8:3, man shall not live by the bread alone, but by every word proceeds from the mouth of God. और मत्ती 4:4 में जब यीशु मसीह की शैतान परीक्षा ले रहे थे तो वहां पर भी वही वचन को कहा जो व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। There are three levels how the Word of God ministers to us. और ये 3 स्तर है जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे बीच में सेवा करता है। 1 Peter chapter 2, verse 3, the Word of God ministers to us the way how a child, a baby is fed with milk. और पहला पत्र 2 अध्याय 3 में परमेश्वर की वचन की सेवा हमारे लिए ऐसी होती है मानो एक बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है उसी के अनुसार। And Matthew's Gospel, chapter 4, verse 4, how a man's hunger is met with the bread, and the Word of God feeds our souls, and we receive the satisfaction and strength and energy to live. और मत्ती 4:4 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे उसकी जो वचन की सेवा है हमारे लिए रोटी के रूप में होती है, कैसे परमेश्वर रोटी के द्वारा हमारे जीवन को तृप्त करता है। In Hebrews chapter 5 and verse 14, the Word of God is compared with a strong meat, the deeper truths of the scriptures with which our intellectual minds, our souls, our spirits are completely satisfied. और इब्रानियों की किताब 5 अध्याय का जो 14 वचन है वो परमेश्वर की वचन की सेवकाई को एक बहुत ही मजबूत एक मटन के रूप में दर्शाता है जो कि परमेश्वर की वचन की गहराई को हमें अनुभव करने के लिए हमें उसको दर्शाता है। Our all intellectual questions be answered, our all queries be answered, and our all struggles in our life, we receive the right word so that we'll have proper direction to move further and further. और हमारे जितनी भी बुद्धि से जो सवाल निकलते हैं और हमारे जितनी भी बहुत सारे हमारे जीवन में परिस्थितियों में सवाल आता है उन सब का उत्तर हमको परमेश्वर की वचन की सेवकाई के द्वारा मिलता है जिसे यहाँ पर मटन के रूप में दिखाया गया है। How the Lord has set an order in providing his heavenly manna to the people of God. We find it Exodus chapter 16. और यहाँ निर्गमन 16 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इजराइलों को भोजन के लिए वो मन्ना का इंतजाम करते हैं। Since you know it thoroughly, I'm not going to go in detail, but I will definitely give you very important tips about this. और वहां पर आप इस कहानी को अच्छे से जानते हैं इसलिए मैं विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा, परंतु आपको कुछ बातें हैं विशेष जो मैं उसमें से आपको बताना चाहूंगा। Verse 4.
निर्गमन 16 का 4। Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. निर्गमन 16 का 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इस समय उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। Every person should collect a quota. That means whatever the portion of the day is needed for the person. और यहाँ जो लिखा है कि प्रतिदिन लोग जब बाहर जाएंगे तो प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, मतलब एक निश्चित मात्रा में वो इस भोजन को इकट्ठा करेंगे अपने लिए। So what I can eat for the day, I should collect. Nothing more, nothing less. यानी कि जितना मुझे प्रतिदिन के भोजन चाहिए उतना ही मुझे इकट्ठा करना है, ना कम ना ज्यादा। But what some people did was 20. परंतु कुछ लोगों ने क्या किया? Verse 20. Notwithstanding, they did not heed Moses, but some of them left part of it until morning, and it bred worms and stank, and Moses was angry with them. और यहाँ 16 के 20 में लिखा है, तो भी उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उनमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बरसाने लगा, तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। So, verse 18, if we read it, we'll understand little more. Even verse 17. Then the children of Israel did so and gathered some more, some less. So, when they measured it by the omers, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Every man had gathered according to each one's needs. 19. Moses said, Let no one leave any of it till morrow. But verse 20, they did not heed Moses, but some of them left part of it until morning, and it bred worms and stank, and Moses was angry with them. और 17 वचन निर्गमन 16 अध्याय। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बरसाने लगा, तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। Instructions are very clear. यहाँ पर आदेश बहुत स्पष्ट दिए गए थे। Each person should go out and gather as per the quota for the day. Nothing more, nothing less. और प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दिया गया था कि वो बाहर जाकर अपने जरूरत के अनुसार प्रतिदिन का एक भोजन वो बटोर लें। And secondly, nothing should be left off for the next day. और उन्हें दूसरी आज्ञा दी गई थी कि वे इसमें से बचा के ना रखें दूसरे दिन के लिए। So it should be consumed on the same day. इसका मतलब है कि जिस दिन बटोरा जाए वो उसी दिन उसको खा के खत्म करना है। That means they should not gather more than what they need for the day. इसका मतलब था कि वो अपने लिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा उन्हें बटोरने की जरूरत उस दिन नहीं है। But the instruction on the sixth day, verse 5, they should gather twice as much as they gather daily. परंतु हम उसके 5वें वचन में देखते हैं कि जो छठवां दिन होगा उस दिन उनको आदेश था कि वो दोगुना बटोर लें अगले दिन के लिए भी। But when they gather twice on the sixth day, seventh day, and it will not be spoiled, it will not be stinky, and there would not be any worms in it. और जब वो लोग छठवें दिन 2 गुना बटोर लेते थे तो उनका बचा हुआ भाग 7वें दिन में ना तो सड़ता था, ना ही वो बसाता था, ना ही उसमें कीड़े लगते थे। Please remember the same manna. और इसलिए हम इस मन्ना के बारे में हम याद रखना है। No, the same manna, there is no change. और ये वही मन्ना है जो परमेश्वर रोज गिराते थे। First day they gather for the first day, and second day they gather for the second day, third day, fourth day, fifth day. But whereas for the sixth day they have to gather
2 days quota, because on the 7th day there won't be any manna. और पहले दिन वो मन्ना इकट्ठा करते थे, दूसरे दिन करते थे और प्रत्येक दिन के लिए 5वें दिन तक वो मन्ना इकट्ठा करते थे और उसी मन्ना को वो 6वें दिन में 2 दिन के लिए इकट्ठा करते थे। So if on 4th day he gathers 2 days quota on the same day, the same manna will stinketh, and it will be full of worms, and it will be spoiled. अगर कोई मनुष्य चौथे दिन में ज़्यादा बटोर लेता था या 2 गुना बटोर लेता था, तो वो बचा हुआ मन्ना सड़ जाता था, बसाता था और उसपे कीड़े लग जाते थे। If the same manna, as per the instructions and commands of the Lord, is collected on 6th day, twice of the day's quota, then it won't be spoiled, and it will be very fresh. They can just enjoy as they do on every day. और परमेश्वर के आदेश के अनुसार जब ये लोग 6वें दिन में 2 गुना मन्ना बटोरते थे, वही मन्ना दूसरे दिन खराब नहीं होता था और वे बहुत ताज़ा रहता था जिसे वे लोग आनंद से खाते थे। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Same manna, वही same मन्ना manna, है, but वही मन्ना it's a command of the Lord that makes manna stinketh, that does not make manna stinketh. और मन्ना तो सारे दिन में एक ही प्रकार का गिरता था, परंतु परमेश्वर की आज्ञा थी और परमेश्वर की आज्ञा के कारण ही एक कुछ दिन में मन्ना बरसा जाता था और बाकी दिन जो 6वें दिन में वो मन्ना सड़ता नहीं था। So that is the lesson. It's man lives by every word proceeds from the mouth of the Lord, but not the bread alone. और ये इसीलिए वचन में ऐसा कहा गया था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के निकले हुए मुख के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। Verse 27 says, Now it happened that some of the people went out on the 7th day to gather, but found none. और यहाँ पे लिखा है 27 वचन में 16 अध्याय निर्गमन की, तो अभी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए परंतु उनको कुछ ना मिला। So what is the lesson we learn here? तो हमको यहाँ क्या सीखने को मिला? It won't automatically fall. It is God who makes manna to fall from heaven. और ये अपने आप ही नहीं होता था परंतु परमेश्वर की योजना से और परमेश्वर की मर्जी से ये मन्ना स्वर्ग से गिरता था। My dear brothers and sisters, don't take things happening automatically. Don't think that this is something happening automatically without God. और हम ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये अपने आप होने वाली घटना है, पर बिना परमेश्वर की इच्छा की अपने आप हो जाएगा, ऐसा हम नहीं सोचना है। It is God who feeds us. It is God who gives us grace to digest the bread what we eat. और परमेश्वर ही है जो भोजन देता है और परमेश्वर ही है जो अनुग्रह देता है कि हम उसे पचा सकें और ग्रहण कर सकें। So this is what we need to understand categorically. और हम इस प्रकार हम समझना है। So Exodus chapters 1 to 12, we find how the people of God were under bondage. निर्गमन 1 से 1 के 12 में हमने देखा कि किस प्रकार इजरायली लोग गुलामी में थे। And chapter 12, verses 1 to 36, we see how God redeemed them through the Passover. और हमने उसमें देखा निर्गमन 12 के 1 से 36 अध्याय में कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें फसह के पर्व की विधि के द्वारा मिस्र से छुटकारा दिया। We see how God led them by his very presence. और उसके बाद हमने देखा निर्गमन 13 अध्याय की 21 और 22 में कि कैसे परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। And then they went through the parting of Red Sea, a symbolic representation of baptism. उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो लाल समुद्र के बीच में से 2 भाग लाल समुद्र हो गया और उसके बीच में से चले गए, जो कि And एक बपतिस्मा के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। and then God gave them the manna, the food for them to eat and live. और हम देखते हैं आगे निर्गमन 16 के 20-22 में कि परमेश्वर ने कैसे उनके भोजन के लिए मन्ना दिया जिसके द्वारा वो जीवित थे। We will stop here. Already I have taken maybe 20 minutes extra. या हम समाप्त कर देंगे क्योंकि हम 20 मिनट आगे जा चुके हैं। Let us pray.